Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, An Empire Across Three Continents, जिसमें अब तक हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जाना था उसके सोर्सेज के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है और साथ ही उस साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, तो उसकी ज्योग्राफी के बारे में भी हमने पढ़ा था। रोमन साम्राज्य को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, अर्ली एंड लेटर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अर्ली एम्पायर के बारे में। So come to the page number 62, third paragraph. The great urban center that lined the shores of the Mediterranean, Carthage, Alexandria, Antioch were the biggest among them, were the true bedrock of the imperial system. It was through the cities that government was able to tax the provincial countryside, which governed much of the wealth of the empire. What this means is that the local upper classes actively collaborated with the Roman state in administrating their own territories and raising taxes from them. In fact, one of the most interesting aspects of Roman political history is the dramatic shift in power between Italy and the provinces. तो जो संपूर्ण साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसने कई नगर स्थापित किए थे जिसके माध्यम से वो अपने साम्राज्य पर एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो इसके तहत जो मेन सेंटर्स थे वो मेडिटेरेनियन के शोर्स पर थे, जिसमें से कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक सबसे बड़े केंद्र थे। तो साम्राज्य या जो एम्पायर है उसकी प्रणाली का सिस्टम का जो बैकबोन थे, एक तरह से बेडरॉक थे, उसके मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाती थी और जिससे कि जो साम्राज्य है उसके ज़्यादातर जो वेल्थ थी वो इन टैक्स से मिलती थी उसे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्थानीय अपर क्लासेस है वो रोम के साम्राज्य को टैक्स देकर और जो उनके टेरिटरीज थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करने में उनके सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। और सबसे बड़ा इटली के जो प्रोविंसेस थे उनके बीच जो पावर शिफ्ट हुआ था वो रोमन हिस्ट्री का सबसे रोचक पहलू जिसे बोल सकते हैं वो था एक तरह से। तो सत्ता का हस्तांतरण सेंटर से जो प्रोविंसेस थे उनके तहत इसी सिस्टम से हुआ था। नाउ नेक्स्ट, throughout the 2nd and 3rd centuries, it was the provincial upper classes who supplied most of cadre that governed the provinces and commanded the army. They came to from a new elite of administrators and military commanders who became much more powerful than the senatorial class because they had the backing of the emperor. As this new group emerged, the emperor Gallienus consolidated their race to power by excluding senators from military command. We are told that Gallienus forbade senators from service in the army or having access to it in order to prevent control of the empire from falling into their hand. तो जैसे जो दूसरी और तीसरी शताब्दी थी उसके समय में जो अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटर थे वो प्रोविंसेस से ही आए हुए थे। तो इस प्रकार एक नया एलिट वर्ग सामने आ रहा था जो सेनेटर्स यानी जो सेनेट के सदस्य थे उनके मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इन्हें जो सम्राट थे, एम्पायर्स थे, उनका समर्थन मिला हुआ था उन्हें एक तरह से। तो जैसे जैसे ये नया वर्ग उभर कर सामने आ रहा था वैसे जो सम्राट गैलिनस है उसने सेनेटरों को आर्मी के कमांडर पद से, कमांडिंग से हटा दिया था और इस जो नया वर्ग था, एलिट वर्ग था, उसको सेना में लगाया गया था। तो उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो कमांड है एम्पायर पर वो सेनेटर्स के हाथ में न जाए, इसीलिए उस नए वर्ग को उसने पूरा समर्थन दिया था। नाउ नेक्स्ट, to sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd centuries, the army and administration were increasingly drawn from the provinces as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy, but individuals of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century, when senators of provincial
origin became a majority. These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and economy, and the rise of new elite in the wealthier and more urbanized part of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. A city in the Roman census was an urban center with its own magistrates, city council, and a territory containing villages which were under his jurisdiction. Thus, one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of cities, and vice versa, usually as a mark of imperial favor or the opposite. One crucial advantage of living in a city was simply that they might be better provided for during food shortages and even famines than the countrysides. अगर संक्षेप में देखा जाए तो पहली जो सेंचुरी थी उसकी लास्ट के टाइम में, सेकेंड सेंचुरी और जो थर्ड सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में जो बाहर से आकर इटली में रहने लगे थे प्रोविंसेस, उनको भी इटली की सिटीजनशिप मिलना इसका मुख्य कारण था, क्योंकि पहले इटली की सिटीजनशिप वहीं तक सीमित थी, इटली तक ही। लेकिन जब बाहर के लोगों को भी अलाउ किया जाने लगा तो इटली में बहुत बाहर से आए थे एलिट वर्ग जो था उनका मेजोरिटी बढ़ने लगी। सीनेट पर उस समय कम से कम थर्ड सेंचुरी तक जो मूल रूप से इटालियन थे उन्हीं लोगों का सेनेट में प्रभुत्व था। लेकिन उसके बाद में बाहर से जो प्रोविंशियल्स आए थे उनकी वजह से, उनके मेजोरिटी की वजह से ये देखा गया कि जो मूल इटालियन सेनेटर्स थे उनका एक तरह से पतन होने लगा, और दोनों तरफ से जैसे पॉलिटिकल भी और उनका इकोनॉमिकली भी, दोनों ही दृष्टिकोण से इटली का डिक्लाइन होने लगा था। और इसमें जो बाहर से आए थे प्रोविंसेस जो मेडिटेरेनियन रीजन से थे उन लोगों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, वो लोग ज़्यादा होने लगे, और जो दोनों ज़्यादा समृद्ध थे, वेल्दी थे और ज़्यादा अर्बनाइज्ड भागों से आए थे, जैसे कि स्पेन, साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका और ईस्ट के जो सिटीज़ थे वहाँ से आने वाले लोगों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। रोम के सेंसस में अगर देखा जाए तो सिटी किसे कहते हैं, तो सिटी उसे कहा जाता था जिसमें मैजिस्ट्रेट खुद का होता था, सिटी काउंसिल होती थी और एक उसकी टेरिटरी होती थी जिसमें विलेजेस होते थे। तो उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँवों से मिलकर एक सिटी बनती थी, और इसमें किसी भी प्रकार की जो दूसरे अधिकार क्षेत्र है उसकी कोई सिटी को नहीं लिया, उसमें नहीं आता था, या एक सिटी के विलेजेस दूसरे सिटी में काउंट नहीं होते थे। लेकिन उसके तहत गांव से मिलकर सिटी बनती थी, और एक तरह सिटी में रहना ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि जब अकाल पड़ता था या फूड की शॉर्टेज होती थी तो उस समय भी जो सिटी में रहने वाले लोग थे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ भी टेरिटरी क्षेत्र में देखा जाए, जैसे जो राजस्थान की कैपिटल जयपुर या इंडिया की कैपिटल दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन्हें उन शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता जो कि गांव में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है, जैसे लाइट है या पानी है या इस तरह की जो भी ज़रूरी आवश्यकता है उनके लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। तो इसी तरह से रोम में भी जो सिटी में रहने वाले लोग थे वो ज़्यादा अच्छा माना जाता था बजाय कि गांव में रहना, क्योंकि उन्हें मूलभूत सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। जब कि अकाल के समय में जब खाने की शॉर्टेज होती थी तो जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें इस कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। नाउ नेक्स्ट, public baths were a striking feature of a Roman urban life. When one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the worth of the clergy there. Water was a sacred element, and to use it for public bathing may have seemed a desecration.
to them, and urban population also enjoyed a much higher level of entertainment. For example, one calendar tells us that spectacular filled no less than 176 days of the year. रोम की अर्बनाइज लाइफ है उसका एक और स्ट्राइकिंग फीचर है पब्लिक बात। इसी तरह की बात का जब एक ईरानी शासक ने इंट्रोड्यूस करना चाहा ईरान में, तो वहाँ की जो क्लर्जी वर्ग था या एक पुरोहित वर्ग था उसके क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके धर्म में वाटर एक सेक्रेड एलिमेंट माना जाता है, पवित्र वस्तु माना जाता है, और इस तरह से पब्लिक बाथिंग में उसके डिसेग्रीगेशन का या अपवित्रकरण का लग रहा था, उन्हें डेसिक्रेशन लग रहा था कि इस तरह से पानी का अपमान हो रहा है। तो पब्लिक बात रोमन की या रोमन साम्राज्य की बहुत ही स्ट्राइकिंग या खास विशेषता थी। इसी तरह से जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसे और भी बहुत से मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैलेंडर मिला है वहाँ पर जिसमें 176 डेज पर कोई ना कोई स्पेटिकुला या फिर कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ पर होते रहते थे। नाउ नेक्स्ट, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। If the first and second centuries were by and large a period of peace, prosperity and economic expansion, the third century brought the first major signs of internal strain. From the 230s, the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. In Iran, a new and more aggressive dynasty emerged in 225. They called themselves the Sassanians, and within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. In a famous rock inscription cut in 3 languages, Shapur I, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. Meanwhile, a whole series of Germanic tribes, or rather tribal confederacies, most notable the Alemanni, the Frank and the Goths, began to move against the Rhine and Danube frontiers, and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany. The Romans were forced to abandon much of the territories beyond the Danube, while the emperors of this period were constantly in the field against what the Ryans called Barbarians. The rapid succession of emperors in the 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strains faced by the empire in this period. तो अगर फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी को मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी और जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन से भरी हुई थी। तो उसके बाद जो थर्ड सेंचुरी थी उसमें इंटरनल स्ट्रेन यानी आंतरिक तनाव का समय की शुरुआत हुई थी। इससे फ्रॉम द 230s यानी 230 सेंचुरी के टाइम से जो एम्पायर था उसने बहुत से अपने आप को बहुत से मोर्चों पर या बहुत से फ्रंट लाइन पर अपने आप को जूझते हुए पाया। बहुत सी समस्याएं उसके सामने थी और एक ईरान में एक बहुत ही अग्रेसिव डायनेस्टी उभर कर सामने आई जो अपने आप को ससानियंस कहते थे। उसने लगभग 15 वर्षों तक तेज़ी से यूफ्रेटिस की दिशा में अपना शासन फैलाया, अपना साम्राज्य फैलाया। और एक इसी के बारे में एक शिलालेख मिला है जो कि 3 भाषाओं में लिखा हुआ है और ये है ईरान के शासक शाहपुर फर्स्ट के बारे में, जिसने ये क्लेम किया है कि उसने जो रोमन सैनिक है उसकी सेना के 60,000 सैनिकों को मारा है और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो रोम है उसकी राजधानी जो थी जो कैपिटल थी एंटियोक, वहाँ तक उसने अपना साम्राज्य फैला दिया यानी उसको भी कैप्चर कर लिया था। और इसी के साथ जो जर्मनी की मूल जनजातियाँ हैं वो या फिर जो ट्राइब्स और
ट्राइबल्स जनजातियाँ और जो मूल जातियाँ हैं उन पर भी उनको राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की तरफ को बढ़ाना शुरू किया, उनको मतलब छोड़ने के लिए उनको बाध्य कर दिया। जर्मन जातियाँ बढ़ने लगी राइन और डैन्यूब की तरफ, जिनमें प्रमुख थी एल्मेनाई, फ्रैंक और गोथ। ये मेन थी जो कि राइन और डैन्यूब की तरफ बढ़ रहे थे। और ये टाइम पीरियड था 233 से 280 के समय, जब लगातार आक्रमण हो रहे थे रोम पर। तो वहाँ के जो जनजाति थे उन्हें डैन्यूब के आगे के जो क्षेत्र थे, टेरिटरीज थी उनकी, उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। और इसी दौरान उनके जो सम्राट थे या एम्परर थे, वो लोग उन जर्मनी या जो बारबेरियंस है उनसे लगातार युद्ध कर रहे थे 3वीं शताब्दी में। और लगातार 47 ईयर तक जल्दी जल्दी से सम्राट बदलते गए, कई नए सम्राट बने, 25 एम्परर्स आए उस समय में। तो ये इससे साफ पता चलता है कि वो जो समय था वो बहुत ही टेंस टाइम था, बहुत ही तनाव की दशा थी, या उस जो रोमन साम्राज्य था उसके लिए बहुत ही तनावपूर्ण समय था वो।